أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کے سامنے چڑھاوا چڑھاؤ، وہ تمہارے بیٹے پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ اس نے نہ جانے مکہ کے کتنے بچوں کو زندگی دی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ بنت اسد خاموش ہو گئیں۔ ان کے دل میں ماں کی بے چینی بھی تھی اور بیٹے کی تکلیف کا درد بھی، مگر ان کا دل اس بات پر کبھی راضی نہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے رب کے سوا کسی اور کے آگے جھکیں۔ انہوں نے نگاہ جھکا لی، بچے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور چپ چاپ اپنے دل میں اپنے پروردگار کو پکارنے لگیں۔ یہ دعا اعلان نبوت سے پہلے کا تھا، مگر مکہ کے دلوں میں محمد بن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور امانت داری کی روشنی پہلے ہی بس چکی تھی۔ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہر لفظ سچائی کی گواہی دیتا تھا، اور آپ کے عمل میں ایسی پاکیزگی تھی کہ دشمن بھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ غریب آپ کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے، مسافر آپ کے دروازے پر سکون پاتا، اور بے سہارا دل آپ کے پاس آ کر راحت محسوس کرتے تھے۔ آپ کی موجودگی ہی مکہ کی فضا میں اطمینان کی ایک لہر پیدا کر دیتی تھی، اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اس شخص کی ذات میں اللہ نے کوئی خاص برکت رکھی ہے۔ جب یہ خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کے دل مبارک میں فوراً اپنے چاچا ابو طالب اور اس ننھے سے بچے کے لیے شفقت کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت مکہ کی گلیوں میں ایک عجیب سی سرگوشی پھیل چکی تھی۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ابو طالب کے گھر ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کی ولادت اللہ کے گھر کعبہ شریف کے اندر ہوئی، مگر وہ نہ تو آنکھیں کھول رہا ہے اور نہ ہی دودھ پی رہا ہے۔ لوگ حیرت میں تھے، کچھ کے دلوں میں فکر تھی اور کچھ کی زبان پر طرح طرح کی باتیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اپنے چاچا کے گھر کی طرف تشریف لائے۔ آپ کے قدموں کی آہٹ میں سکون تھا اور چہرے پر ایسی نرمی اور رحمت کی جھلک تھی جسے دیکھ کر دل اپنے آپ جھک جاتا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچے تو اندر ایک خاموش سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ فاطمہ بنت اسد کی آنکھوں میں فکر تھی، ابو طالب کی پیشانی پر ہلکی سی شکن، اور گھر کے دوسرے لوگ بھی اس ننھی سی صورت کو گھیر کر بیٹھے تھے جو اپنی ماں کی گود میں خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو سب نے ادب سے سر جھکا لیا۔ آپ نے نرمی بھری نگاہ اس بچے پر ڈالی اور فاطمہ بنت اسد سے آہستہ آواز میں پوچھا، چاچی میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ فاطمہ بنت اسد نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، یا محمد، یہ بچہ اب تک نہ آنکھیں کھول رہا ہے اور نہ دودھ پی رہا ہے، دل بہت گھبراتا ہے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس ننھے سے بچے کو بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اٹھایا اور اسے اپنی مبارک چھاتی کے قریب کر لیا۔ اس لمحے گھر کی فضا جیسے ٹھہر گئی، سب کی نگاہیں اس منظر پر جمی ہوئی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی طرف شفقت اور رحمت سے بھری نظر ڈالی، وہ نظر جس میں دعا بھی تھی، محبت بھی، اور اللہ کی رضا کا نور بھی۔ جیسے ہی وہ نظر اس ننھی سی صورت پر پڑی، ایک کرشمہ ہوا۔ اس بچے نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھولیں، اس کی ننھی سی پلکیں اٹھیں، اور جو پہلا دیدار اس کی آنکھوں نے کیا وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس نورانی چہرے کو دیکھ کر گھر میں موجود ہر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو اپنے لعاب دہن سے تر کیا اور بڑی نرمی سے بچے کے منہ میں رکھ دی۔ سبحان اللہ! اس ننھے سے بچے نے فوراً آپ کی انگلی مبارک کو چوسنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کیا، گھر کی فضا میں ایک عجیب سی روشنی اور سکون پھیل گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو اب فکر کے نہیں بلکہ شکر اور راحت کے تھے۔ جیسے ہی مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ فاطمہ کا بیٹا جو نہ آنکھ کھول رہا تھا نہ دودھ پی رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں آتے ہی آنکھ کھول دی، لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ کسی کی زبان سے نکلا، یہ تو بڑی برکت کی نشانی ہے۔ دوسرے نے کہا، یہ بچہ تو شروع سے ہی خاص ہے، اور سچ بھی یہی تھا۔ وہ بچہ جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ کی انگلی مبارک کو چوسا، آگے چل کر شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہلائے۔ تاریخ نے اس مقدس واقعے کو بڑی شان اور احترام کے ساتھ درج کیا، کیونکہ یہ صرف ایک بچے کی آنکھ کھلنے کا منظر نہیں تھا، بلکہ نور سے نور کے ملنے کا وہ لمحہ تھا جس نے صدیوں تک کے لیے دلوں کو روشن کر دیا۔ اس دن سے ابو طالب کے گھر کی فضا ہی بدل گئی، ہر کونا سکون اور برکت سے بھر گیا۔ فاطمہ بنت اسد بار بار اس ننھے سے بچے کو سینے سے لگا کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور دل ہی دل میں کہتی، یا رب، تو نے اسے پیارے محمد کی مبارک اور پاک نظر سے نواز دیا، اب اس کی زندگی کو بھی اپنے نور سے بھر دے۔ اور واقعی وہ نور آگے چل کر پوری دنیا میں انصاف، شجاعت اور حق کی روشنی بن کر پھیل گیا۔ عربوں میں نام رکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھا، نام صرف پکارنے کے لیے نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ اس کا نام بچے کے مقدر، اس کی شان اور آنے والے وقت کی پہچان سمجھا جاتا تھا۔ لوگ بچے کو دیکھتے
उसके चेहरे की चमक और आंखों की नूरानियत को महसूस करते और दिल ही दिल में ये सोचते कि इसका नाम भी इसकी शान के मुताबिक होना चाहिए। इसीलिए अबू तालिब के घर पैदा होने वाले उस नूरानी बच्चे के बारे में भी हर दिल में यही ख्याल था कि इसका नाम कोई आम नाम नहीं हो सकता। मक्का की रिवायत ये थी कि जब कोई बच्चा पैदा होता तो उसे किसी बुत के सामने ले जाकर उसका नाम रखा जाता, ताकि लोग ये समझें कि बच्चा उनके बुतों की सरपरस्ती में आया है। मगर फातिमा बिन्त असद का दिल कभी बुतों की इबादत में नहीं लगा। वो हमेशा अपने रब के घर काबा शरीफ की तरफ झुकी रहती थीं। इसी वजह से उन्होंने अपने प्यारे जिगर के टुकड़े को भी उस फितने से दूर रखा। वो न उस प्यारे बच्चे को किसी भी बुत के सामने ले गईं और न ही किसी बुत के नाम पर अपने जिगर के टुकड़े का नाम रखा। एक दिन मक्का की एक गली में दो औरतें आपस में बातें कर रही थीं। एक ने हैरत से कहा, क्या तुमने सुना? फातिमा अभी तक अपने बेटे को किसी भी बुत के सामने नहीं लाई और न ही अब तक उसके लिए कोई नाम तय किया। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ मैंने भी सुना है। फातिमा खुद भी कभी बुतों के सामने नहीं गईं। उनका तो मामला ही अजीब है, हमारी समझ से बाहर। वो औरतें ये नहीं जानती थीं कि फातिमा बिन्त असद जिनकी माँ है वो कोई आम बच्चा नहीं है। वो आगे चलकर ऐसा शख्स बनने वाला है जो इल्म और हिकमत का दरवाजा कहलाएगा, जिसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज इंसाफ और हक की पहचान बनेंगे और जिसकी शुजात और ईमान की मिसालें सदियों तक दी जाएंगी। फातिमा बिन्त असद का ये फैसला कि उन्होंने अपने बेटे को बुतों की रिवायत से दूर रखा, दरअसल उसके मुकद्दर की पहली निशानी था। एक ऐसी निशानी जो बता रही थी कि ये बच्चा आगे चलकर हक की रोशनी और इल्म की बुलंदी का अलम बनेगा। फातिमा बिन्त असद बच्चे को गोद में लिए बैठी थीं। वो बार बार उसके माथे को चूमती, उसकी पेशानी पर हाथ फेरती और उसकी आंखों की तरफ देखती जो अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। उनके चेहरे पर मोहब्बत के साथ साथ एक हल्की सी तफक्कुर भी थी। दिल के किसी कोने में एक मीठी सी बेचैनी उतर आई थी, क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये वही नूरानी बच्चा था जिसकी पैदाइश अल्लाह के घर में हुई थी और जिसकी विलादत के साथ ही घर की फिजा बदल गई थी। फातिमा जब उसकी तरफ देखती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे उसकी पेशानी पर कोई अनकहा पैगाम लिखा हो, जिसे पढ़ने के लिए दिल ठहर सा जाता हो। उन्होंने आहिस्ता से अबू तालिब से कहा, आपने सोचा है हमारे इस प्यारे से बच्चे का नाम क्या रखा जाए? अबू तालिब कुछ पल खामोश रहे। उन्होंने बच्चे की तरफ देखा, फिर नजर झुका ली। उनके दिल में भी वही सवाल गूंज रहा था जो हजरत फातिमा के दिल में था। वो सोच रहे थे कि ये बच्चा कोई मामूली नस्ल की अमानत नहीं है, बल्कि अल्लाह के घर से जुड़ी हुई एक ऐसी निशानी है जिसका नाम भी आम नामों जैसा नहीं हो सकता। उनकी निगाह उस नन्हे से चेहरे पर टिक गई जिसमें अजीब सी चमक और सुकून झलक रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे ये बच्चा अपने आने वाले मुकद्दर की गवाही खुद दे रहा हो। घर की खामोशी में उनकी आवाज गूंज उठी, मेरा दिल कहता है कि इसका नाम ऐसा होना चाहिए जो इसकी बुलंदी और शान को बयान करे। मगर अजीब बात तो यह है कि मेरा दिल किसी एक नाम पर ठहरता नहीं। कुछ देर के बाद फातिमा बिन्त असद प्यारे बेटे की पेशानी पर हाथ फेरते हुए आहिस्ता से बोली, मेरे दिल में एक नाम उतर रहा है। क्यों न हमारे बेटे का नाम हैदर रखा जाए? ये मेरे वालिद के नाम पर है और हैदर का मतलब शेर होता है। ये कहते हुए उनकी आंखों में मोहब्बत और उम्मीद की चमक थी। अबू तालिब ने बच्चे की तरफ देखा, फिर हल्की सी सांस ली और बोले, हैदर अच्छा नाम है, मगर मेरा दिल किसी और नाम की तरफ झुक रहा है। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई और नाम मुकर्रर है। ये कहकर उन्होंने बात वहीं रोक दी और फातिमा समझ गईं कि अब इस नाम का फैसला भी अल्लाह की तरफ से होगा। उस रात अबू तालिब देर तक सो नहीं सके। उनका दिल किसी अनजानी बेचैनी से भरा हुआ था। वो बार बार उठकर बच्चे की तरफ देखते, फिर आसमान की तरफ नजर उठा लेते। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। बहुत देर बाद जब उनकी आंख लगी तो ख्वाब में उन्होंने एक नूरानी मंजर देखा। उन्होंने देखा कि फिजा में एक आवाज गूंज रही है, इस बच्चे का नाम अली रखो, क्योंकि ये अली उल मकाम यानी बुलंद दर्जों वाला है। ख्वाब देखते ही अब्बू तालिब की आंख खुल गई। उस वक्त उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने उठकर हजरत फातिमा बिन्त असद को ये ख्वाब सुनाया। हजरत फातिमा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, मेरा दिल भी यही गवाही देता है कि ये बच्चा बुलंद दर्जों वाला है। सुबह होते ही अबू तालिब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर रात का ख्वाब बयान किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह ने इसका नाम खुद रखा है अली। हुजूर ने इस नाम को पसंद फरमाया और यूं ये नूरानी बच्चा हजरत अली इब्न अबी तालिब के नाम से मशहूर हुए। यहाँ अली सिर्फ एक नाम नहीं था। अली का मतलब होता है बुलंद, ऊंचा, आला, शान वाला, यानी ऐसा शख्स जो मकाम और मर्तबे में ऊंचाइयों पर होगा। ये नाम उनके मुकद्दर की तरफ भी इशारा था कि ये बच्चा आगे चलकर हक और इंसाफ की बुलंद मिसाल बनेगा। अब्बू तालिब का दिल जैसे इत्मीनान से भर गया। उन्होंने बच्चे को उठाया,
उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मेरे लाल, आज से आपका नाम अली है। फातिमा बिन्त असद ने बच्चे को सीने से लगाया और धीरे से पुकारा, अली मेरा प्यारा बेटा। ये नाम उनके होंठों से निकलते ही जैसे घर की फिजा में घुल गया। ऐसा लगा मानो दीवारों, छत और आंगन की हर सांस उस नाम को अपने अंदर समेट रही हो। घर में मौजूद हर शख्स ने एक पल के लिए बच्चे की तरफ देखा और फिर फातिमा के चेहरे की तरफ, जहां माँ की ममता के साथ एक अजीब सा इत्मीनान चमक रहा था। वो नाम सिर्फ एक पुकार नहीं था, बल्कि एक दुआ, एक अरमान और एक गहरी उम्मीद की सदा थी। अब मक्का की गलियों में हर कोई उस नाम को दोहराने लगा। जब कोई औरत पानी भरते हुए किसी से बात करती तो कहती, क्या तुमने सुना? फातिमा के बेटे का नाम अली रखा गया है। अली तो बहुत ही उम्दा नाम है। ये नाम पहले कभी नहीं सुना गया। कोई मुसाफिर काबा के सायों में बैठकर हैरत से कहता, अली वही बच्चा जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ, सचमुच इस घर की अमानत है। बच्चों की जुबान पर भी वो नाम उतर आया था और हर तरफ एक खामोश सी कबूलियत महसूस की जाने लगी। तुमने सरदार के बेटे अली को देखा? अली बहुत ही प्यारा है। अम्मी कहती हैं, अली को देखो तो दिल में सुकून उतरता है। किसी ने कहा, ये नाम उस बच्चे के चेहरे की नूरानियत से बिल्कुल मेल खाता है। दूसरे ने कहा, अली, सच में ये नाम इसके लिए ही बना है। और हर बार ये नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक अजीब सी इज्जत और एहतराम की कैफियत पैदा हो जाती, जैसे उस नाम के साथ ही एक न दिखाई देने वाली हैबत जुड़ गई हो, जो सुनने वाले के दिल पर हल्के से दस्तक देती और उसे अदब के एहसास से भर देती। उस दिन के बाद जब भी हजरत फातिमा अपने बेटे को बुलाती, अली कहकर पुकारती, तो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता। उन्हें लगता था कि इस नाम के हर हरफ में कोई रहमत छुपी हुई है। हजरत फातिमा बिन्त असद का दिल शुरू से ही बुतों की इबादत से बेजार था। उनके दिल की हर धड़कन रब्बे काबा की तरफ उठती थी। छोटे से हजरत अली जब उनकी गोद में मुस्कुराते तो वो उन्हें उठाकर आहिस्ता कदमों से काबा शरीफ की तरफ चल पड़ती। रास्ते भर में लोग नन्हे अली को देखकर सुकून हासिल करते। हजरत फातिमा बिन्त असद के होंठों पर हमेशा शुक्र के अल्फाज रहते। वो काबा शरीफ की दीवारों के करीब खड़ी होकर आहिस्ता से कहती, या रब्बे काबा, तूने मुझे जो अमानत अता की है उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी बना दे। मेरे लाडले, तेरा रिश्ता इन पत्थर के बुतों से नहीं, तेरा रिश्ता उस रब से है जिसने आसमान और जमीन बनाए हैं और जिसने तुझे पैदा किया। वो बुतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थीं। जैसे ही दुआ मुकम्मल होती, वो अपने सीने से बच्चे को और करीब लगा लेती और उसी राह से वापस लौट आती जिस राह से आई थीं। मक्का की गलियों में लोग उन्हें देखते और कभी कभी एक दूसरे से कहते, फातिमा का ये तरीका समझ नहीं आता। बुत हमारी इज्जत के लिए ही है, लेकिन वो उनके करीब तक नहीं जाती। मगर अब्बू तालिब की शान, उनकी इज्जत और उनके घराने की वकार ऐसी थी कि सब अपने दिल की बातें दिल में ही दबा लेते। कोई खुलकर कुछ कहने की जुर्रत नहीं करता था और फातिमा बिन्त असद उसी खामोशी में अपने बेटे को रब्बे काबा के नाम पर पालती रहीं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, शेर खुदा की जिंदगी जिस नूर और शान के साथ शुरू हुई, उसी शान के साथ आपकी पूरी जिंदगी गुजरी। आपकी पैदाइश से लेकर आपकी जिंदगी के हर कदम तक हक, बहादुरी और वफा की रोशनी नजर आती है।